Can a particle behave as a wave? The answer changed the physics ये forever. जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, इट इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल पिलर्स, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? एक है, वन इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड अनदर इज हीजनबर्ग's uncertainty principle. So let us start it out with what? De Broglie hypothesis. Okay? De Broglie hypothesis. De Broglie कौन सा था? He was a French physicist and he was a mathematician also, physicist also. 1924 में इसने ये De Broglie hypothesis दी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर हम देखेंगे जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है दो चीजों का बना हुआ है। स्टार्टिंग में ही जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं तो वहां पे हम बताते हैं दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड लाइट रेडिएशन। ओके, तो अगर जो ये लाइट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दिस लाइट इज शोइंग ए ड्यूअल कैरेक्टर, इट इज बिहेविंग एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। तो इसने कहा कि नेचर इज हाईली सिमेट्रिकल। इफ light is having a dual character, definitely matter will be also having a dual character. So based on this philosophical idea, he developed his hypothesis that is known as de Broglie hypothesis. What de Broglie hypothesis tells us? De Broglie hypothesis tells us कि अगर आपके पास क्या एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल होगा, कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, whether that is a subatomic particle like an electron moving, like a proton moving, like a neutron moving, like an atom moving, like a molecule moving, clear? Like a car which is moving, a tennis ball which is moving. They, like the electromagnetic radiations, like the light which is having a dual character, these moving material particles will be also having a dual character. Means that they are sometimes behaving as a wave and sometimes they are behaving as a particle. इसके साथ साथ और एक पॉइंट कहा इसने कि when they are having a wave nature as well as a particle nature, means that whenever there is a particle and it is moving, that motion of the material particle gives it a particle character as well as a wave character. Means that this moving material particle is always associated with a wave, and that wave, उस wave को इसने नाम दिया matter wave, नाम दिया matter wave. So this is a matter wave is what? Matter wave is a type of wave which is associated with a moving material particle. इसका दूसरा नाम में हम देते हैं de Broglie wave. और उस matter wave की जो wavelength होगी, that wavelength will be referred as the de Broglie wavelength. उसको हम de Broglie wavelength भी कहते हैं। क्लियर? तो इसने क्या कहा? अगर मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पर कहूंगा, मैं कहूंगा कि de Broglie a French physicist in 1924 advanced the idea of dual nature of the light, that light is having a dual character. Likewise, moving material particles like electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, a tennis ball, or a moving car or an aeroplane will be also having a dual character. Means that they are having a particle as well as a wave character. Or a wave is always associated with a moving material particle that controls the particle in every respect, and that wave is called a matter wave or a de Broglie wave, and the wavelength of that matter wave is called as the de Broglie wavelength. इस तरह से इसने कहा कि जो ये मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, इसका वेव कैरेक्टर भी है और इसका पार्टिकल कैरेक्टर भी है, यानी दोनों कैरेक्टर्स है। तो अगर कोई बताना है हमें कि दिस इज हैविंग ए पार्टिकल कैरेक्टर, इट विल बी ऑलवेज हैविंग ए momentum. And whenever we are speaking about the wave, it is having a wave character, means that wave will be associated with a wavelength. Means that the characteristic property of a wave is that it is having a wavelength, and the characteristic property of a particle is that it is having a momentum. And what he does, इसने interconnect किया इस wavelength को with the momentum of the particle. Means that इसने wave और particle को दोनों इकट्ठा किया, because moving material particle is behaving as both wave as well as a particle. So that is why इसने क्या किया, इसने इन wavelength और momentum को इसने एक ही relation में रखा। ठीक है, और उस रिलेशन को हम कहते हैं de Broglie's रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन हमें बताती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो बराबर होती है h by mv, h by
mv, where h is what? It is the Planck's constant. It is having a value of 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. M is the mass of the moving material particle and v is the velocity of the moving material particle. Means that इसने इस momentum को h, you know, mv is the momentum, और इसको मैं h by p भी लिख सकता हूँ. p is the linear momentum of the particle. तो इसने momentum और wavelength को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कराया और एक रिलेशन दी जहां पे हमें लैम्डा जो है किसके बराबर आ गया h by mv, and that shows that any moving material particle is having a dual character, is always associated with a wave, and that wave is the matter wave. Clear? Got my point? तो अब जो ये रिलेशन इसने की, ये रिलेशन जो इसने दी, इस रिलेशन को इसने कैसे डिराइव किया? How he derived this relationship? Clear? ये कैसे इसने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. So let us go find this derivation. तो जब हम derivation पे आते हैं, हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं let us take an analogy of a material, moving material particle as a photon. हमें पता है according to Max Planck's quantum theory, जो electromagnetic waves है या light है, they travel in space in the form of small packets of energy, and their each packet is associated with an energy equivalent to h nu, है ना? Where nu is the frequency of the radiation. So that means this for energy of that photon will be equivalent to h nu, where nu is the frequency of that photon. You got my point or not? है ना? Clear? तो accordingly अगर हम देखेंगे, हमें पता है, but we know that कि जो ये nu होता है ये बराबर होता है c over lambda, है ना? Particularly when we are speaking about the light, that light will be c by lambda because c is the velocity of the light. That is 3 into 10 to the power 8 meters per second in vacuum. Clear? Got my point? So यहाँ पे किसी भी अगर हमें कोई दूसरी वेव होगी, let us suppose sound wave है, वहाँ पे v होगी. v is the velocity of the wave. लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, वो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी with the velocity of light, that is c. Clear? तो हमें पता है nu is equivalent to c over lambda, means that as per the electromagnetic radiation this nu is equivalent to c over lambda. So substitute the value of nu in this equation, तो हमें e किसके बराबर होगा? h, nu के बदले में क्या लिखूंगा? c over lambda. Clear? Now according to Einstein's mass energy equivalence, जो है वो है E equivalent to mc square. But now this is the energy of the photon, which is equivalent to hc by lambda. This is the energy of the photon, which is equivalent to mc square. Left hand sides are equal, so their right hand sides are also equal. अगर हम इनको कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को, तो हमें क्या होगा? hc over lambda will be equivalent to mc square. मैं इसको mc into c लिखूं. गुणा थी इसी का नंबर काट, सो वो h by lambda करने में बराबर, that would be equivalent to mc. और हम लिख सकते हैं ना lambda, अगर मैं इसको ऊपर लूंगा इसको नीचे लूंगा तो lambda किसके बराबर होगा? h by mc. So this is the wavelength of the photon emitted, that would be equivalent to h by mc. अगर हम कोई भी moving material particle लेंगे वह जिसकी velocity होगी v, then this c will be replaced by v. Is it or not? कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल लेंगे हम, उसकी वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं होगी, दैट वुड बी इक्वल टू लेट अस सपोज v. तो हमारे लैम्डा जो है किसके बराबर होगा? h by mv, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. नाउ यहां पे पॉइंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस इक्वेशन की, इस रिलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? हमें लैम्डा जो है बराबर आ गया h over mc, ठीक है ना, या mv देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. अगर हम देखेंगे यहाँ पे h इज ए कांस्टेंट, है ना, इसका मतलब है अगर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोई बॉडी चलेगी तो ये लैम्डा जो है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, मास ऑफ द मटेरियल. यानी जितना मास कम होगा उतनी इसकी वेवलेंथ क्या होगी? यानी उतना ज्यादा उसका वेव कैरेक्टर होगा, एंड लाइकवाइज जिसका मास ज्यादा होगा उतना उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा? तो अगर हम स्मॉल मास की बात करेंगे, यानी अगर हम स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेंगे लाइक एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज हैविंग अ मास ऑफ 9 × 10 to the power minus 31 किलोग्राम, बहुत ही कम मास, मिनिमम मास, तो यानी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगा, मींस दैट इट विल बी हैविंग अ डोमिनेंट वेव कैरेक्टर. यानी उसका ड्यूअल कैरेक्टर है लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर क्या होगा? कम, और वेव कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है. डी ब्रॉगली रिलेशन हमें बताती है. उसके बरअक्स अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है ना, मैं चल रहा हूँ, आई एम ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास भी क्या होगी? वेव एज वेल एज ए पार्टिकल नेचर. लेकिन मेरा मास कितना है?
काफी ज्यादा है। तो जब ज्यादा मास होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। दैट इज व्हाई आई एम हैविंग ए प्रोनाउंस्ड पार्टिकल कैरेक्टर, इसलिए मैं लोकलाइज्ड हूं स्पेस। नाउ लेट अस क्लैरिफाई इट विद ए न्यूमेरिकल। अगर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसके जरिए से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए। लेट अस सी हियर वन थिंग। अगर हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस सपोज वी आर हैविंग ए टेनिस बॉल, वी आर हैविंग ए टेनिस बॉल। लेट अस सपोज इट इज हैविंग ए मास 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स मास है इसका टेनिस बॉल का। हमारे पास एक टेनिस बॉल है, इसका मास कितना है 200 grams, that is equivalent to 0.2 kilogram. Is it or not? ठीक है ना। Let us suppose ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी क्या हम फेंक सकते हैं किसी टेनिस बॉल को। Let us suppose go 200 meters per second, ठीक है ना। इसी का 200 meters per second क्या है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो 200 meters per second। तो let us suppose we will see it is what would be it is wavelength। तो वेवलेंथ हमें पता है h/m इट विल बी 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है 0.2 किलोग्राम into वेलोसिटी कितनी है, that would be 200। so how much it would be, it would be 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second divided by it would be 40। is it or not? ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे it would be how much, it would be 4 1s 4 6 is 24 4 5 is 20 4 6 is 24, it will be 1.656 into 10 to the power minus 35 meters। तो आप अंडरस्टैंड करो, इस जो एक टेनिस बॉल है जिसका वजन होगा 0.2 किलोग्राम्स और 200 ग्राम्स और दैट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर्स पर सेकंड, बहुत ही तेज जा रहा है वो, ठीक है ना। स्टिल उसकी वेवलेंथ क्या होगी 10 to the power minus 35 मीटर। तो दैट वेवलेंथ कितनी होगी, कम, बहुत ही कम वेवलेंथ। मींस दैट इट विल बी हैविंग अ डोमिनेंट क्या पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर विल बी मिनिमाइज्ड, है ना। सो दिस विल बी हैविंग अ डोमिनेंट पार्टिकल कैरेक्टर। अब इसी तरह अगर हम लेंगे, लेट अस सपोज हम लेंगे इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर। अगर हम उसका मास देखेंगे, मास अगर हम अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। इज इट और नॉट? अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में देखेंगे अराउंड 2 into 10 to the power 6 meters per second इसकी स्पीड रहती है, कितनी 2 into 10 to the power 6 meters per second। तो अगर हम इसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन करेंगे वो होगा 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड divided by 9 into 2 into 10 to the power 6 into 10 to the power minus 30, so it would be 3.313 into 10 to the power minus 10 meters। ये वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमारे आ गई ये, so it would be how much, it would be 331.3 into 10 to the power 12 भी लिख सकता हूँ minus 12 meters। इस minus 12 10 to the power minus 12 meters को हम कहते हैं पिकोमीटर, एक पिकोमीटर। तो इसका मतलब है हमें जो वेवलेंथ मिली वो मिली 331 पिकोमीटर्स। तो वेवलेंथ मुझे बताओ कितनी है 331 पिकोमीटर्स। तो इसका मतलब है वेवलेंथ यहाँ पे क्या मिली हमें, यहाँ पे मिली हमें 10 to the power आप सब 10 to the power minus 34। यहाँ पे हमें क्या मिली 331 पिकोमीटर। सो यहाँ पे वेवलेंथ हमें मैक्सिमम मिली। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज हैविंग अ डोमिनेंट वेव कैरेक्टर बिकॉज़ इट इज हैविंग अ गुड वेवलेंथ, इट इज हैविंग अ डोमिनेंट वेव कैरेक्टर। दैट इज हाउ जो है डी ब्रॉगली ने कहा कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज बिहेविंग एज अ वेव, इट इज हैविंग अ ड्यूअल, इट इज बिहेविंग एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, मींस दैट इट इज हैविंग अ ड्यूअल कैरेक्टर। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, अगर हम देखेंगे डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्लियर। लाइट जो है ना, लाइट अगर हम देखेंगे, लाइट, मेरी बात सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे डी ब्रॉगली ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए वेव कैरेक्टर, क्लियर। तो अगर हम लाइट जो है, लाइट इज शोइंग इंटरफेरेंस, लाइट शोइंग जब या डिफ्रैक्शन, जब हम लाइट को पास करते हैं थ्रू ए स्मॉल होल व्हिच इज हैविंग द डायमेंशंस ऑफ द लाइट, ठीक है ना। सो वो क्या होती है, लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होती है, वो हमें कंसेंट्रिक फ्रिंज देती है, लाइट के कंसेंट्रिक रिंग्स देती है, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बीम को पास करेंगे थ्रू ए क्रिस्टल व्हिच इज एक्टिंग एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो वो
कि इलेक्ट्रॉन बीम भी हमें जब ये जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे वो भी हमें देती है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग देयर आल्सो एज ए wave, जैसे कि X-rays are having a wave character and likewise this electrons they are also showing a wave character. Let's suppose मैं लाइट को लूंगा, जब मैं लाइट को पास ऑन करूंगा थ्रू टू स्लिट्स तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे तो यहाँ पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, एक लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे और उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे जो लाइट है, ये लाइट बिहेव्स एज ए वेव, वो वेव्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी और वो हमें यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड्स देंगी, उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न एंड दैट शोज दैट लाइट इज हैविंग अ व्हाट वेव कैरेक्टर। लेकिन इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम को भी छोड़ेंगे यहाँ से तो क्या होता है, ये यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है और एक दूसरे के साथ ये इंटरफेयर करते हैं ये वेव्स और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है what interference pattern, so that shows that this electron beam is behaving as a wave। और ये भी देखा गया है कि अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ेंगे यहाँ से थोड़ा स्लिट, अगर हम यहाँ पे एक स्लिट रखेंगे जिसका एक और रखेंगे, ये स्लिट, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा, क्लियर, तो अब क्या, या तो ये यहाँ से जाना चाहिए या तो ये दो में से एक, अगर ये पार्टिकल होगा या तो ये यहाँ से जाना चाहिए या तो ये यहाँ से जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक सिंगल स्पॉट मिलना चाहिए या यहाँ पे हमें एक सिंगल स्पॉट मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको जिंक सल्फाइड कोट करेंगे तो अगर जब दैट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, जब वो टकराएगा उससे तो यहाँ पे एक ग्लिटरिंग स्पॉट मिलेगा हमें, इंडिकेटिंग दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ पार्टिकल कैरेक्टर। तो देखा गया है कि जब हम इसकी तरफ देखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं ना, when we are observing it, this electron either goes through this slit or this slit and produces a single spot। देखिए, this is known as quantum enigma, this is known as quantum enigma। और जब हम इसकी तरफ नहीं देखते हैं, when we are not looking towards it, ठीक है ना, it is forming interference pattern here, means that it is behaving as a, ये ऐसा कुछ है जैसे कि कुछ आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है और उसके वेव्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड व्हाई इट इज सो, हाउ इट बिहेव्स लाइक सो, नो वन नोज। दैट इज नोन एज द क्वांटम एनिग्मा, दैट इज नोन एज द क्वांटम एनिग्मा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दैट मीन्स डी ब्रॉगली ने कंक्लूड किया कि मटेरियल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स इज हैविंग बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर लाइक द फोटॉन्स आर हैविंग। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज हैविंग एन utmost significance in case of microscopic particles like electrons which are having a small negligible mass, they are having a predominant wave character, clear? And in case of bigger objects which are having a huge mass, their particle character is dominant, they are having a minimum wave character. The de Broglie's relation is insignificant for those material objects which are having a huge mass.